Good morning, dear students. Today we will start the session 12, 13, and 14 from Unit 3, that is Basic ICT Skills. So let's get started. Now, our session 12 is Communication through emails. Okay, so first of all, to receive an email from another user, the email address must be shared that user. Okay, so if you want to receive the email, first of all, what you need to do, you have to share your email to that person. If that particular person will have your email, then he can directly send a message at your email. Every incoming message appears in the inbox folder by default, and the message sent by that person will be received on the inbox folder. When you open your email or Gmail, you will get that particular message at inbox folder. To read the received email, log in to the required email account. The Gmail dashboard will appear with the received unread email highlighted in bold. Click on the email and read it. And how can we read that particular email? First of all, we will log in from that particular Gmail ID. Then we will go on inbox folder, and here you can find that message in the unread label. Okay, and when we click on that particular email, then it that particular email will be opened and we can read it. Okay, now when we read, then how can we reply a particular message? Okay, then first of all, what we need to do, we have to open the email account. Then there is, when we open that email, then we will get the reply button at the bottom. Okay, now when we click on the reply button, then a blank space, a new page will appears below. Okay, then to write the email, type the required message. Okay, here we don't need to write the recipient email address because we are replying. So email ID is already mentioned on the reply session. Now, if an email consists of multiple recipients, select to reply all option if you want to send the email to all those email addresses. Now, there is a possibility that in your email there are multiple recipients. Okay, then if there are multiple recipients, then you have two options. One is reply and second is reply all. If you click on reply button, then what will happen, the message will goes only to those person who have created that email, जिसने मैसेज को create किया है. Okay, and if we click on the reply all option, then that particular message will go on all the email address that are mentioned, whether it is mentioned in to section, whether it is mentioned in CC section, whether it is mentioned in BCC section. All the emails that belongs to, all the email addresses that belongs to that particular email, that particular message will go to all. ठीक है, सबके पास एक एक कॉपी आपकी वहां पर रिसीव हो जाएगी. And at the last we have to click on the send button. Okay, now next is, how can we forward an email? Now forward means, let us suppose I receive one email and I want to send that particular email to another recipient. Now reply means तो आप उसी को reply कर रहे हो, जिसने send किया है उसी को आप दोबारा message send कर रहे हो. But forward means you are sending that message. Message is same, but receiver can be different. Okay, so first of all we need to open the required email. Then we will click on the forward button. It is also present on the bottom. Then you will get a space below the write the email, and then we type the required message and we will click on the send button. Now at the last, how can we delete an email? ठीक है, to delete an email, click on the delete icon and the delete mail will move to the trash folder where it will stay for a certain period of time. That will be, after that it will be permanently removed. Whenever you delete a message, it
will not directly delete it. What happens when you delete a message? It will goes to trash folder, and it will stay on the trash folder for certain amount of time. Generally, in normal cases, it remains on trash folder on till 30 days. After 30 days, it will delete. It will be deleted from the trash folder also. When a message is deleted from the trash folder, it means that the message is permanently deleted. Now, our session 13 is Introduction to Social Media. Now, we are very familiar with social media nowadays. What is the meaning of social media? A social media platform provides user-friendly interface for an individual to connect with others using the internet. Social media platform is a dedicated website or application. Some common social media platforms are Facebook, Instagram, Twitter, etc. We know that what is the meaning of social media. Okay, now what is the meaning of blog or web blog? A blog, sorry, here is wrong spelled. This is blog, blog blog. It is an online journal. It is a collection of personal opinions and experiences that, okay, what is blog? Blog एक्चुअल में क्या होता है? It is a website. ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर any person can share their opinion and their experience. जहां पर कोई पर्सन अपने ओपिनियन को शेयर करता है और जहां पर वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है. ठीक है, तो नाउ डेज आप कोई भी आप ब्लॉग बना सकते हो किसी भी चीज से रिलेटेड. आप ब्लॉग बना सकते हो अगर आपको किसी भी चीज की नॉलेज है. ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो और ब्लॉग में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उस इंफॉर्मेशन को उस ब्लॉग में शेयर कर सकते हैं सो दैट जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो अदर पर्सन के पास भी क्या हो प्रोवाइड हो सके. जनरली आप कुकिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखते हो, आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखते हो. कुकिंग में जो भी रेसिपी आपको आती है आप उसका आइडियाज और उसकी रेसिपी आप शेयर कर सकते हो. आप ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी भी प्लेस पे अगर आप गए हो तो आप उस प्लेस में आप गए हो उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो. वहाँ कौन कौन सी प्लेसेस आप कोई भी आप बता सकते हो कि कौन सी प्लेस आपको वहाँ पर जानी चाहिए, कौन सी प्लेस पे आपको अवॉइड करना चाहिए. ऑल दी एक्सपीरियंस आपने उस प्लेस से रिलेटेड जो भी आपने देखे होंगे आप उसको शेयर कर सकते हो. तो जो लोग आपके ब्लॉग को फॉलो कर रहे हैं आप उसको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी. ठीक है, सो अब यहाँ पर बात आती है द टर्म ब्लॉगिंग एक्ट एज एन क्रिएटिंग राइटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस. एंड ब्लॉगिंग क्या होता है? मीन्स जो भी मैसेज आप क्रिएट कर रहे हो लिख रहे हो उस पर्टिकुलर मैसेज को क्या बोलेंगे? आप ब्लॉगिंग बोलेंगे. एंड ब्लॉगर कौन होगा? वो जो पर्सन जो मैसेज को क्रिएट कर रहा है, वो जो ब्लॉग को पोस्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? आपके ब्लॉग बोलेंगे. एंड सम पॉपुलर blogging websites are WordPress, Blogger, Tumblr, Typepad, LiveJournal. These all are the most common blogging websites. Now, next is Twitter. Twitter is also a micro-blogging website and it allows user to post short messages commonly referred as tweets. जो भी मैसेज हम ट्विटर में करते हैं उन मैसेज को क्या बोला जाता है? ट्वीट हम बोलते हैं. एंड द लिमिट ऑफ द ट्वीट इज 280 character. You cannot write more than 80 character in any particular tweet. Now, tweeting is the act of, what do you mean by tweeting? Tweeting is the act of posting messages on Twitter. And if we are posting a message on Twitter, then it is called tweeting. In February 2019, Twitter had 126 billion daily active users sending over 500 million tweets every day. Okay, this is a fact. Now Facebook is a social networking site and it allows user to share their content with others. User can post, comment, share pictures and watch video or chat live with others. And Facebook have over a 1 billion user now. Now next is YouTube. We know that we use YouTube for sharing videos and YouTube is owned by Google Corporation. In 2018, over 3 hours of video are uploaded on YouTube in every single minute. You can imagine the popularity of YouTube from that fact.
Now WhatsApp. WhatsApp nowadays, WhatsApp is a very common platform. It is a cross platform messaging app. What do you mean by cross platform? You can send a message. Let us suppose I have a laptop and I can open WhatsApp on my laptop and I can send message from my laptop to any other mobile, because my laptop is having Windows 10 operating system and any mobile having a Android operating system. So this is called the cross platform when operating system are different. WhatsApp is a cross platform messaging app which is owned by Facebook. Currently WhatsApp is the biggest online messenger app. WhatsApp have 1.5 billion active monthly user that send 50 million message on daily basis. Now, at the last, what is Digital India? Digital India is a campaign, is a national-wide campaign which is launched by Government of India in 1st July 2015. The primary objective of the Digital India is to improve the infrastructure of the digital e-governance, and you can say that the overall infrastructure है डिजिटल इंडिया का, या आप बोल सकते हो इंटरनेट का, उसको इम्प्रूव करना. ठीक है, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया. ठीक है. नाउ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इंक्लूड द फॉलोइंग: टू डेवलप एंड सिक्योर द स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर और स्टेबल बनाना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया. नाउ सेकेंड है टू डिलीवर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली. तो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनका डिजिटली ट्रांसफर, दिस इज ऑल्सो अ मोटिव ऑफ डिजिटल India. And the last, to achieve universal digital literacy among all the citizens of the nation. मीन हर किसी को डिजिटल लिटरेसी हो, हर किसी को कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट यूज करना आए. ठीक है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया. नाउ नेक्स्ट इज basic care and maintenance of a computer. How can you maintain and take care of your computer? Now, how can you, there are 2 points, how can you take care of the hardware and how can you take care of the software. Now how can you maintain the hardware? You can clean your computer regularly, you can prevent your computer from overheating, you can take care of your battery, you can use a power surge protector, protect your computer from physical harm. Now how can you maintain your software? Keep the operating system up to date, install antivirus, maintain backup of the data, perform defragmentation, remove unusual programs, enable firewalls, remove device safely, and use system resource feature. ठीक है, these are the points by which we can maintain our hardware and software. Now in that there are some point like surge protector, firewall, defragmentation. What is the meaning of these terms? I will tell you one by one. First is, what is surge protector? Surge protector is a special device that can restrict the power supply under a safe threshold all the time. Now let us suppose student, होता क्या है, आपके घर में जो पावर सप्लाई आ रही है, ठीक है, वो पावर सप्लाई कॉन्स्टेंट नहीं होती. वो पावर सप्लाई क्या होती है, उसमें सैचुरेशन बहुत होता है, वो अप डाउन बहुत होती है, हाई भी होती है और लो भी होती है. तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज सर्किट से डिज़ाइन होती है. तो अगर वोल्टेज अगर हाई हो गई तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो क्या हो सकती हैं, आपकी पूरी की पूरी खराब हो सकती हैं बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज. ठीक है, तो उस हाई और लो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्ज प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, जो क्या करता है, हमारी पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है. अगर हाई आएगी इसको भी कंट्रोल करेगा, लो आएगा उसको भी कंट्रोल करेगा, और एक कांस्टेंट पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए क्या हो, कन्वीनियंट हो. ठीक है, तो दिस इज अ सर्ज प्रोटेक्टर. Now, what is a malware? Malware or malicious software is a small program that is created to damage or to gain access to anyone's computer. तो हम सभी को पता है कि malware और malicious code एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि बनाया जाता है किसी के कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए या किसी के कंप्यूटर को हैक करने के लिए. ओके, नाउ
वहीं से एक टर्म निकल के आता है मालवेयर से कि वायरस क्या होते हैं। वायरस भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ मालवेयर है। और वायरस की क्या प्रॉपर्टीज है, वायरस क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, अपने आप को रिपीट करता है और अपनी कॉपीज खुद क्रिएट करता है। अगर अपनी कॉपी खुद क्रिएट करेगा तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी जो होगी वो अननेसेसरी फिल हो जाएगी। और अगर वो मेमोरी आपकी फिल हो जाएगी तो आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी स्लो हो जाएगी। इसके साथ साथ यह कर सकता है किसी भी फाइल को डैमेज भी कंप्यूटर वायरस कर सकता है। नाउ एक और टाइप है आपका मैलवेयर का, वो है साइबर अटैक। साइबर अटैक का मीन्स क्या होता है कि कोई भी अगर एक ऐसा प्रोग्राम है, आप अगर उसको इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे, तो वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर पे इलीगली एक्सेस गेन कर लेगा, ठीक है। इस तरह के अटैक को साइबर अटैक कहेंगे। अगर कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया, जैसे आपने उसको इंस्टॉल किया, उसने आपके कंप्यूटर पे एक्सेस ले लिया, आपकी परमिशन के बिना आपकी फाइलों को यूज कर रहा है, तो इस तरह के अटैक को साइबर अटैक कहेंगे। और ये भी क्या है, वन ऑफ द कैटेगरीज है मालवेयर की। ओके, नाउ सेकंड लास्ट पॉइंट है एंटीवायरस। क्या होता है, इन सारी चीजों से बचने के लिए, मैलवेयर से, वायरस से, साइबर अटैक से, हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीवायरस, ठीक है। तो ये उनको डिटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है, रिमूव करता है किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को किसी भी तरह से। नाउ व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल इज अनदर वे ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। आपके कंप्यूटर पे जो इंटरनेट है और आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो उसके पीछे एक फिल्टर लगा हुआ है, उसको हम फायरवॉल करते हैं। जो भी आपके कंप्यूटर पे डेटा आ रहा है वो फिल्टर होके आता है विद द फायरवॉल। अगर फायरवॉल को लगता है कि ये जो फाइल है वो आपके इसमें वायरस हो सकता है या आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है, तो फायरवॉल उसको वहीं पर रोक देता है और वो आपको हमेशा एक फिल्टर डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। फायरवॉल क्या कर रहा है, आपके जो कंप्यूटर में डेटा को आने ही नहीं दे रहा है। और एंटीवायरस क्या होता है, अगर कोई बाई चांस कोई एक ऐसा डेटा है जो आपके कंप्यूटर में आ चुका है और वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनको रिमूव करता है एंटीवायरस। बट फायरवॉल आपके कंप्यूटर में उसको एंटर ही नहीं करने देता, वो फिल्टर कर लेता है डेटा को, ठीक। तो अ फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एक्ट एज अ फिल्टर अगेंस्ट इनकमिंग डेटा। अ फायरवॉल filters data being received by the computer and prevents any unauthorized access by any software. Now last topic है defragmentation. Now defragmentation एक्चुअल में क्या होता है, कमिंग अपॉन थ्योरी पार्ट को हम यहाँ पर रिमूव करते हैं, ठीक है। थैंक यू, यहाँ पर हो गया। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। लेट अस सपोज दिस इज अवर मेमोरी। ये हमारी क्या है, एक मेमोरी है और उस मेमोरी को मैंने डिवाइड कर दिया है 12 ब्लॉक्स में। 12 ब्लॉक्स आर देयर। और अगर मुझे मेमोरी को स्टोर करना है, जैसे हर ब्लॉक क्या कर रहा है, 100 MB रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल कितना होगा, 1200 MB मेरे पास मेमोरी है। अब लेट अस सपोज मुझे क्या करना है, फाइल 1 फाइल को स्टोर करना है और मेरी फाइल का साइज है 300 MB। तो मैं क्या करूंगा, 100 MB का ब्लॉक है तो मैं तीनों फाइल को यहाँ पर ऑक्यूपाइड कर लूंगा, 1 2 3। ये ऑक्यूपाइड हो गए फाइल से। फिर मेरे पास डेटा आ गया 200 MB का, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपने डेटा को स्टोर कर दिया, ठीक है। 4 और 5 में मेरा डेटा स्टोर हो गया। फिर मेरा क्या है, 300 MB, 1 2 3 3 ब्लॉक यहाँ पर आपके हो गए, 1 ब्लॉक, ठीक। दिस ब्लॉक आपके, ये ब्लॉक यहाँ पर मेरे हो गए। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर रख देता हूँ, सेम फॉर दैट, ठीक। तो यहाँ पर हो गया। अब वीडियो जो है मेरा वो भी 200 MB का है, तो मैंने 9 को सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 9 को मैंने यहाँ पर कुछ भी लाते हैं, मैंने उसको भी रेड बना लिया और 10 को भी मैंने रेड बना लिया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्या क्या स्टोर हो चुका है, इतना मेरा जो डेटा है वो मेरा स्टोर हो चुका है। मैं यहाँ पर उसको इटैलिक कर देता हूँ जिससे पता चल जाए। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ से, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा डेटा को इंसर्ट ही करूंगा, मैं डेटा को डिलीट भी करूंगा। अब मैं डेटा को डिलीट कर रहा हूँ, मैंने डिलीट कर दिया इन्फो। इन्फो मेरा 300 MB है, इन्फो मेरा है, तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ओके। अब मेरा गेम क्या है, मेरे पास 400 MB का आ गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 11 12। अब यहाँ पर जो है गेम मेरा 400 MB का है।
अब मेरे पास जो कॉन्टिन्यूस ब्लॉक बचे वो 11 और 12 बचे, 2 ही बचे हुए हैं। उसके बाद मेरे पास जो डेटा स्टोर है वो स्पेस तो मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक यहाँ पर रह गए, पर जो डेटा है वो मेरे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इसको, मैं इसको ब्लैक रहने देता हूँ। 400 MB का है, 11 12 मैंने यहाँ पर लिख दिया 13 एंड 14, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लेट अस सपोज इनमें मैंने गेम इंस्टॉल कर दिया, ब्लैक करके मैंने यहाँ पर इसको गेम इंस्टॉल कर दिया, ठीक। अब मैंने डिलीट फाइल कर दिया, फाइल मेरा 300 MB है, तो ये तीनों मेरा यहाँ पर खाली हो गया। अब मुझे 300 MB चाहिए। अब 300 MB अगेन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, मैं 300 की जगह यहाँ पर इसको कर लेता हूँ 400 MB लेट अस, ठीक है। 400 MB करना है तो मेरे पास अगेन 4 ब्लॉक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन जो है वो मेरे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर मुझे 400 MB इंस्टॉल करना है तो मुझे अब अपनी फाइल को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक पार्ट तो मैं इन 3 ब्लॉक में स्टोर करूंगा और दूसरा पार्ट में यहाँ पर स्टोर करूंगा। और जब मुझे फाइल को चाहिए होगा तो फिर वहां पर भी क्या होगा कि मैं कुछ पार्ट यहाँ से उठाऊंगा और कुछ पार्ट यहाँ से उठाऊंगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमारी कंप्यूटर मेमोरी पे स्पेस तो अवेलेबल हो बट जो स्पेस हो वो कॉन्टिन्यूस ना हो, तो हम बोलेंगे हमारी डिस्क क्या होगी, फ्रैगमेंट हो गई है। ये हार्ड डिस्क के लिए एक प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर इस तरह से डेटा स्टोर होगा तो डेटा को क्या होगा, रिट्रीव करने में टाइम लगेगा और वो जो स्पीड हो जाएगी वो बहुत क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का यूज करता हूँ। अब डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन क्या करेगा, मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, सॉरी कंट्रोल वाई, ओके। जैसे लेट अस सपोज ये मेरा डेटा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं। अब मैंने क्या करूंगा, यहाँ पर 4 लिख दिया, देन 5 लिख दिया, देन मैंने यहाँ पर लिख दिया 13, देन मैंने लिख दिया 14, देन मैंने लिख दिया 9, देन मैंने लिख दिया 10, देन मैंने लिख दिया 11, देन मैंने लिख दिया 12, ठीक है। मैंने लिख दिया 12 और यहाँ से मैंने इनको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मैं अपने डिस्क को डीफ्रैगमेंट करूंगा तो क्या होगा, जितना भी एलोकेटेड स्पेस है वो एक तरफ आ जाएगा और जितना भी फ्री स्पेस है वो एक तरफ आएगा। अगर अब मुझे मूवी को स्टोर करना है तो मैं मूवी को यहाँ पर आराम से स्टोर कर सकता हूँ, मेरे पास चारों क्या है, कॉन्टिन्यूस ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर मैं डेटा को ऐसे स्टोर करूंगा तो मेरी जो हार्ड डिस्क की स्पीड है वो बढ़ जाएगी और मेरी हार्ड डिस्क क्या करेगी, बहुत बेटरली परफॉर्म करेगी, ठीक। सो बेसिकली व्हाट इज डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, ये हमारी हार्ड डिस्क की जो स्पीड है उसको इनहेंस करता है। कैसे करता है, बिकॉज हमारे हार्ड डिस्क में एक प्रॉब्लम आती है फ्रेगमेंटेशन की, वो उसको रिमूव करता है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जब हमारी हार्ड डिस्क में स्पेस तो अवेलेबल हो लेकिन वो स्पेस क्या हो, कॉन्टिन्यूस ना हो, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में हो। जिससे क्या होगा कि अगर हम डेटा स्टोर करेंगे और डेटा को रिट्रीव करेंगे तो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम डिस्क डीफ्रैगमेंट करेंगे तो क्या होगा, जितना भी एलोकेटेड स्पेस है वो एक तरफ आ जाएगा और जितना भी फ्री स्पेस है वो दूसरी तरफ चले जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो स्पीड है हार्ड डिस्क की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन क्या करेगा, हमारे जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल क्या करेगा, वो इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।